I'm 21 years old doing BTech. My question is, when youngsters, we go to college, there are so many people around who have no idea or are unaware of what a guru is. And then they comment negative about gurus, and we try to defend, that backfires. And then comes anger, how to avoid that. Whenever I sit for meditation, I get little dizzy. Everything for around 10-15 minutes is revolving and I cannot open my eyes. What should I do? Number one, why should you talk about your guru to those who are not interested in any guru? Guru is like something who is, or someone who is the most precious and the treasured one. And you always keep your treasures under lock and key. You are not exhibiting it to people. Then why should you talk about a guru or all the gurus and have a debate with them? See, there are always going to be for and against. For anything, good, bad, there are always going to be people for it and anti it. No need to discuss about it. Because it is only with the good fortune somebody would be aware that Guru exists. And further, when your good fortune, past pious karmas are ready to give you fruit, then you will have the desire to meet a Guru. And when all these huge karmas will be ripened to give you fruit, then only you meet a Guru. It's not an easy thing to meet a Guru. Guru is not a tomato and potato. No. Guru is not $1 million. Any drug peddler can make that much money. Even presidentship or prime ministership of a country is not a very big thing, because we say hundreds and thousands of kings came and died and nobody even remembered their name. So जब राजा महाराजा की कोई वैल्यू नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की कोई वैल्यू नहीं, संत इतने कीमती होते, अकीमती वस्तु मुश्किल से मिलती और अति सौभाग्य से मिलती। ऐसे ही तो ये कलयुग का इतना पसारा, इतना दुख, जरा जरा सी बात पे लोग क्रोध में एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। इतनी हिंसा, 6 साल की बच्ची से लेके 75 साल की औरत का जहां बलात्कार हो जाता है, ऐसे माहौल में तुम कहो एक ब्रह्मवेत्ता आपको मिल जाए, ऐसे ही मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत श्रेष्ठ पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, उसका कारण है। जब तक संत नहीं मिले तब तक शुभ कर्म करेगा, शुभ कर्म का फल भोगेगा, एक चक्र चलता रहेगा। अब आ गए बीच संत, अब उन्होंने त्याग, तपस्या, तितिक्षा, ज्ञान का मार्ग दिखाया। मैं फिर कह रही हूं, मैं ज्ञान बाद में बोल रही हूं, पहले त्याग, तपस्या, तितिक्षा, फिर ज्ञान का नंबर आता। आप लोगों ने उल्टा करके रखा है, ज्ञान पहले, त्याग, तपस्या, तितिक्षा जरा भी नहीं। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। त्याग मतलब where you willfully decide not to indulge. You could,
but you don't. You choose not to. You can sit and gossip for hours, but you choose not to. You can sit and watch internet for hours in night, but you choose not to. त्याग है, तपस्या है जो तुम सोच के करते हो. आप 10 रोटियां खा सकते थे, आप कहते एक ही खाऊंगा. यहां मैं आज खाऊंगा ही नहीं. देखे तो सही कि खाए बगैर रह सकते हैं, कि मर जाएंगे इतनी बात में कि अब खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया. तो संकल्प किया कि नहीं खाएंगे. संकल्प किया आज बोलेंगे ही नहीं, मौन रहेंगे. विल बी क्वाइट. जीभ को खुजली होती, बोले बगैर रहती नहीं. कान को बीमारी है, सुने बगैर रहते नहीं. पाप ने संकल्प किया आज पूरे दिन अपने ही कमरे में रहेंगे. अपनी छुट्टी को अंग्रेजी में कहते हैं हॉलीडे, मतलब होली डे. A day when you do holy things is a holiday. And if you don't do holy things, then it is not a holiday. Then it is an unholy day. You go clubbing, pubbing, dancing, gossiping, shopping. It is unholy day. You meditate, you do pranayam, do asana, you do reading of scriptures. It makes the day as a holy day. पवित्र दिन. याद रहे, जीवन में अगर तपस्या नहीं है ना, तो आपके ज्ञान के शब्द वो दाने हैं जो आग नहीं मिली तो कभी भुनेंगे ही नहीं. पॉपकॉर्न खाते हो? पॉपकॉर्न क्या है? भुने हुए दाने रेत में या अवन में या कुकर में आपने दाने डाले, सेक दिया, और वो दाने मकई के फूल गए एकदम. थोड़ा बटर डाला, थोड़ा नमक डाला. Never eat popcorn without butter, because if you eat dry popcorn, it will increase vata in your body. So your intestines will go dry, you will have palpitations after a time, you will have problem in sleeping. Butter is very important. Not to butter others, but to butter yourself. So always eat butter. Right? तो दाना फूलता है. तो पॉपकॉर्न. एक पंजाबी जाट पहली बारी गया सिनेमा. दोस्त कहता है पॉपकॉर्न खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे. अरे अच्छा खा लेंगे, पर नई चीज पता नहीं क्या खिलाएगा ये. तो कहते 100 रुपए का आएगा. कोई बात नहीं, बहुत पैसे हैं, ले ले 100 रुपए. वो गया, जब लेके आया लिफाफे में, कहते ले फुल्ले हैं ये तो. पॉपकॉर्न बोले था, ये पॉपकॉर्न क्या हुआ, ये तो फुल्ले हुए. हमारे गांव में तो फ्री में मिल जाते हैं. वो भड़भुंजे को बोलो ऐसे ही दे देता है वो तो. इतने पैसे, तुम्हारा शहर तो अच्छी जगह नहीं. सेक लगे तो वो फूलते हैं. गुरु ने ज्ञान के शब्द रूपी बीज दिए मकई के. त्याग तपस्या की अग्नि दोगे तो फूल जाएंगे, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे. कच्चे खा नहीं सकते. मुट्ठी भर के बीजों की कोई तुम्हें दे, बीज थोड़ी खा लोगे. पर बीज को मिट्टी में दबाओ, कम से कम 10 से 12 इंच मिट्टी के अंदर, साफ की हुई मिट्टी, रोड़ा पत्थर, खरपतवार ना हो, जमीन की सफाई हो. फिर बीज डालो, फिर पानी डालो, फिर इंतजार करो, फिर फसल तैयार होती. आप बीज को ऐसे ही जमीन पर, पत्थर पर, चट्टान पर डाल दोगे, फसल नहीं उगेगी.
गुरु ज्ञान के बीज डालता है, पर अगर तुम्हारे मन का खेत तैयार नहीं है, मतलब वासना का खरपतवार न हो, मोह ममता के पत्थर न हो तेरे मन में, आसक्ति की रोड़ी तेरे मन में न पड़ी हो, तो गुरु का ज्ञान रूपी शब्द बीज तेरे मन की जमीन में गया तो त्याग और तपस्या की अग्नि और जल से ये बीज पल्लवित हो जाते, अर्थात वह ज्ञान तुम्हारे लिए खिल जाता। नहीं तो हाथ में लेके घूमते रहो, फसल कुछ नहीं। प्रॉब्लम यह है कि सब ज्ञान के इन बीजों को तो लेने को बड़े तैयार हैं, पर त्याग तपस्या करके कोई राजी नहीं। वह मुश्किल लगती, वो आवश्यक है। तो त्याग, तपस्या, तितिक्षा। तितिक्षा अर्थ मतलब क्या है कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ जावे और हम डोले नहीं, इसे कहते तितिक्षा। तपस्या में हम चुनते हैं, मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, चुना है। मैं 8 घंटे बैठ के मंत्र जप करूंगा, चुना है। मैं 2 घंटे आसन करूंगा, और करने में जो कष्ट हो रहा है वो आप झेल रहे हो और आप चुने हैं, इसलिए आप उसे करते हैं। मैं मौन रहूंगा, चुना, चॉइस। पर तितिक्षा मतलब क्या? आपके शरीर में कोई रोग हो गया और आप हाय मर गए कर, आपसे सहन ही नहीं हो रहा है। आपको भूख लगी है और जो भोजन दे रहे हैं उन्होंने कहा भी रुक जाओ, अभी खाना तैयार नहीं है, तो आप लड़ने लग गए, मेरा भोजन कहाँ है, मेरा भोजन कहाँ है। अब घर में लड़ो तो फिर भी चलो माफी है कि घर में संसारी लोग ऐसे ही करते हैं, पर कोई आश्रम में रहने वाला लड़ने लग जाए तो ये लड़ाइयां होती मैंने देखी हैं। दूध के लिए लड़ रहे हैं, मिठाई के लिए लड़ रहे हैं, फल के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा कपड़ा मुझे क्यों नहीं दिया इसलिए लड़ रहे हैं। तितिक्षा, अभाव को सहन करने की शक्ति, अपमान होए सहन करने की शक्ति। लोगों का क्या है, वो ज्ञानी तभी तक है जब तक कंडीशंस आर कंड्यूसिव एंड गुड फॉर देम। पर जरा सी कोई सख्त शब्द बोल दे, आइए मैं कह दूं, बोले वो गुरु ही क्यों ना होए, बर्दाश्त नहीं होता ना। जब तक कन्वीनियंट है, और मैं तो एक सिंपल रूल जानती हूं, महात्माओं से सुनी थी ये बात कि जब जिस दिन महात्मा तुम्हें जी कह दे, समझ लेना तुमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। एक महापुरुष और तुम्हें जी कहे, शर्म से डूबने की बात है। कहीं समर्पण में, प्यार में खोट होती है तो ही दूरी होती है, तो ही महात्मा फिर आपसे बड़े आदर अदब से बात करने लग जाए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि महात्मा अगर खुश रहे तो वो गाली गलौच करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट इफ अननेसेसरीली गुरु इज गिविंग यू सम रिस्पेक्ट, देन नो इट समथिंग इज रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग, वेरी मच रॉन्ग। और थोड़े नहीं तो ज्यादा अंश में ये लोगों ने बड़ा स्पष्ट करके दिखाया है कि उनमें तितिक्षा नहीं है। और मैं कई बार सोचती हूँ, त्याग नहीं है, तितिक्षा नहीं है, तप नहीं है, तो सुने ज्ञान का क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तो त्याग, तपस्या, तितिक्षा, फिर ज्ञान पल्लवित होता है। अज्ञान पल्लवित हो गया तो शुभ शुभ कर्म से वो पीछे हट जाएगा। मैं करता नहीं, मैं साक्षी स्वरूप हूं, वो जान जाएगा। कर्म का बंधन टूट जाएगा, कर्म का चक्कर ही टूट जाएगा। और आपका प्रारब्ध ये कह रहा है कि तुम दुख भोगो। ज्ञान हुआ तो दुख की कड़ी टूट जाएगी। तो प्रकृति तुम्हें तुम्हारे पापों की वजह से उस ज्ञानी गुरु तक पहुंचने ही नहीं देगी। क्योंकि पहुंच गए तो फिर सुख दुख दो सम कर जाने और माने अपमाना, हरख सोगते रहे न्यारा तीन जग तत् पछाना। अब हर्ष हुए, शोक हुए, समचित्त, इतनी ऊंची अवस्था ज्ञान के बाद ही तो होगी ना। पर तुम्हारी प्रारब्ध ने अभी तुम्हारे लिए दुख, कष्ट, पीड़ा। देखो, वासना में आके संसार के पीछे भागो, फिर हमारी मनचाही वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी इंतजार करो, फिर वो चीजें किसी और को मिल गई उन्हें देख देख के जलो, फिर मिली तो कोई छीन के ले गया, फिर उसकी तकलीफ सहो। कितना कष्ट है। ज्ञान कहेगा वासना से मुक्त हो जा, त्याग तपस्या करेगा वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। तो वासना की सारी दौड़ खत्म हो गई। और जिसकी वासना की तड़प खत्म हो गई, ऐसे मनुष्य को कौन सी परिस्थिति दुख दे सकती है? एक परिस्थिति भी उसको दुख नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। इतनी ऊंची अवस्था। अब गुरु मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, त्याग तपस्या होएगी, तो ये तो इतना खूबसूरत रास्ता है, ये ऐसे ही मिल जाएगा। तो तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें महात्मा से दूर रखेगा। महात्मा अच्छे ही नहीं लगेंगे। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, ये स्वभाव होगा। और रात देर तक शराब पी, खाने खाए, और फिर दिन के 11-12 बजे उठ रहा है, वो अमृत वेले का रस ले सकता है? जी नहीं। संत प्यारे का दर्शन करने का जो आनंद होता है, योग अभ्यास करना, दर्शन करना, कीर्तन करने का जो सुख होता है, वो जो भोगी है, वो जो पैसे पीछे दौड़ रहा था, वो जो कामी है, क्या वो इसकी प्राप्ति कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसीलिए महात्मा लोगों ने कहा कि जब पूर्व के हमारे श्रेष्ठ कर्म जागते हैं, तब ही हम अपने अंदर ऐसी इच्छाओं को देखेंगे कि जी करेगा। तब ऐसे संजोग बनेंगे कि अचानक से किसी की मीठी वाणी कान में आ जाएगी। ये कौन है पूछोगे, कौन है सुनोगे, जाऊं अब मिलूं ये चाहेगी। जाएगा, सुनेगा, मिलेगा, जिंदगी पलट जाएगी। क्या बढ़िया बात है। कबीर जी का बहुत सुंदर एक पद है। कबीर जी कहते हैं कि भाई मैंने राम स्मरण किया, हाँ मैं तो मस्ती में हूं, पर तू जो नहीं कर रहा है ना राम सिमरन, बड़ा पछताएगा, आज नहीं तो कल। क्यों? जब दुख आएंगे तो करेगा हाय हाय। भक्त के भी दुख आते हैं, वो कहते शुक्र है तेरी रजा। सेम सिचुएशन, एक लुटपुट गया, रो रहा है, हाय हाय हाय, डिप्रेशन में, सुइसाइड कर लेता है। एक के खराब हुई, वो कहता है राजी हूं तेरी रजा में।
कबीर जी कहते हैं राम सुमिरन कर, पछताएगा नहीं तो। कबीर बोल बोल थक के चले गए, कितने लोगों ने सुना? लोग उनसे लड़ते ही रहे। हाँ। लोग सुनते नहीं, सुनना चाहते नहीं, जानना चाहते नहीं, और फिर पीड़ा और दुख की तो मिलती है फिर, और क्या। कबीर जी कहते हैं जब तक गुरु नहीं मिला था ना, भूले भटके फिर रहे थे। गुरु मिला तो वो कहते हैं अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, छाड़ा तीर्थ नहाना। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना। सारी दुनिया भई सयानी, सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक दीवाना, मैं ही एक दीवाना। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। जप तप कीने ना काया के जारे, ना हरि रीझे जप तप कीने ना काया के जारे। ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई। कबीर जी उल्टा बोल रहे। कहना ये चाहिए गुरु मिले तो रास्ता मिल गया, पर वो क्या करे मैं भूल गया। क्योंकि जिन्हें रास्ता मिलता है वो तो दुनिया में जाते हैं, और मैं दुनिया का रास्ता भूल गया। मिल गया गुरु, गुरु ने जुगत सिखा दी। गुरु ने कहा बेटा क्रिया कर्म आचार छोड़, झूठा पाठ करना छोड़, झूठी घंटी बजाना छोड़, झूठी अगरबत्ती जलाना छोड़, जाके नदी नाले में नहाना छोड़। कहते जी सारी दुनिया जाती है। कहते वो बड़े सियाने, तू बेवकूफ हो जा, तू नहीं जाएगा। और तेरे जप तप करने से नहीं वो मिलेगा, एक काया को जलाने से वो नहीं मिलेगा, और धोती छोड़ के लंगोटी पहन लेने से नहीं मिलेगा। और ये 5 इंद्रियों को तोड़ फोड़ ले तो भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? कबीर कहते मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई।
लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। दया राख धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, दया राख धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी। अपना साजीव सबको माने, ताही मिले अविनाशी, ताही मिले अविनाशी। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। वाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। आत्म राम ताही को मिली है, कहे कबीर सुजाना, आत्म राम ताही को मिली है, आत्म राम ताही को मिली है, कहे कबीर सुजाना, कहे कबीर सुजाना। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु